Talking of Mental Health Day, it serves as a crucial reminder of the importance of mental health well-being in our lives. It raises awareness about mental health issues, reduces stigma, and encourages open conversations. By prioritizing mental health, we foster a supportive environment that promotes healing and resilience. Recognizing this day helps individuals seek help, practice self-care, and understand that mental health is just as vital as physical health. The theme of this mental health World Mental Health Day is mental health at workplace. To talk on this topic, we have with us today Ms. Kirti Sudha Rajput, a rehabilitation psychologist and CEO of Kaizen Institute of Mental Health and Rehabilitation. Now, talk about more about ma'am. Ms. Kirti Sudha Rajput is a rehabilitation psychologist accredited by the Rehabilitation Council of India. Her illustrious career covers both governmental and non-governmental sectors in mental health and disability rehabilitation. She has served over more than 7,000 individuals with disabilities and over mental health conditions. Kirti Sudha has been deeply involved in the training and supervision of higher education trainees in her field. She has led various awareness and sensitization programs and conducted more than hundreds of skill training sessions. Her advocacy goes beyond district service as she persistently campaigns for the rights and benefits of persons with disabilities. Significantly, Kirti Sudha has been instrumental in the completion of two national level research projects at the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Her academic contributions are noteworthy, including presentations at both national and international forums and multiple publications in the scientific journals. In addition to this, recently she has been elected as the president of Association of Rehabilitation Psychologists of India. So, with that introduction, I would now request our respected director, Dr. Suman Kumarji, to address the audience and share his thoughts. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, the resource person and all the participants. On behalf of Ali Abajang National Institute of Speech and Hearing Disability, Mumbai, and its regional center and CRC, I welcome you, ma'am, for accepting our invitation to be the resource person for today. And as we are celebrating World Mental Health Day today, and the theme of this um, mental health day is time to prioritize uh, mental health in workplace. So the theme is aptly selected this time, though it is always required that we maintain mental health in workplace because that creates a conducive environment and also facilitate productivity in the official uh, assignments and as well as also foster interprofessional communication. आशीष मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी. Ashish is my interpreter, ma'am, and I think he is not able to hear. That's the reason he is not able to. Yes, sir. I think there is some sort of network issue, sir. That is why the problem is facing the problem. Looks like that, sir. Yeah, now seems Ashish ji? Ashish ji? hello. So, Hello. madam, Ji? I would request you to kindly proceed with your talk, and I'll try to get this fixed as soon as possible. I'll call him here so that he can Oh, introduce here. That would be better. Uh, Pratibha ma'am, you can ask him to join from here. yes, sir. I'll inform Ashish, sir. Yes, sir. Ashish, go. Direct office. So if it is going to take only few minutes, if you want few minutes, I can wait and Could probably you wait then for we can 2 start. minutes? Yeah. Could you wait for 2 minutes, Sudha ma'am? Yeah. Let Ashish go to that. Okay. Mr. Chandan Kumar Barwan. देखा गंगा जी वाला कैसे दिख रहा है? देखा गंगा जी वाला कैसे दिख रहा है? बद्दी बांध दे तो अच्छा लगे. चले अंदर जा. अंदर जा. दोनों तरफ से चुन्नी डालना तो अच्छी लगे. एक भी बहुत कर रहे.
So it looks like he's been informed. He'll be going to director's office, ma'am, and once he's, Right. he can start off with the talk, ma'am. Okay. Okay. Sorry for the inconvenience and thank you for the patience, ma'am. That's absolutely fine. I would like to know which language is more preferred, English, Hindi, Marathi, or shall I use combination? Combination of both would be appreciated, I think so. The Okay. crowd may be a mixture crowd now. Yeah. Right. And people are slowly joining in. So I think by the time you Hmm. start, you'll have enough. Okay. Sure. I think you need to give me permission to share the screen. Just a minute, ma'am. Just Sure. I hope you got the permission to share the screen now. I'll just check. Yes. Okay, thank you. Yeah. So Ashish is there, ma'am. I think right time to start here. Thank you so much. So over Yes. to ma'am, Kirti ma'am. Well, Sure. Okay. So I believe my presentation is visible. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Um, Fine. Yes. So, as a rehabilitation psychologist and CEO of Kaizen Institute of Mental Health and Disability Rehabilitation, I welcome you all to today's webinar on the topic mental health at workplace. First of all, I wish you all a very happy and enthusiastic and competent time at your workplace and have a great mental health. Mr. Chanda, please let me know if I need to slow down or if I need to take a pause. Okay, please let me know wherever is it Mr. required. Ashish. Yeah, Ashish ji, fine. अगर Mr. Ashish. Yes, I'm sorry. Yes. So the topic is mental health at workplace. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम किसी जगह पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बड़ी ही एंथुजियाज्म के साथ, बड़ी ही एनकरेजमेंट के साथ नई नई चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खुश दिखते हैं, एक्साइटेड लगते हैं। वही कुछ लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, स्ट्रेस लगते हैं, परेशान लगते हैं, उनका टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, कई बार उन्हें एब्सेंट होना पड़ता है। ये दोनों ही तरीके के लोग हम अपने वर्क प्लेस में देखते हैं, या जहां आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वहां देखते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है मेंटल हेल्थ? क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं? क्या वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ की अहमियत इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उस पर एक पूरा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे डेडिकेटेड करना पड़ा? क्या होता है अगर मेंटल हेल्थ ठीक ना हो? हम कैसे जाने किसी की मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इंडिविजुअल की ओर से, कलीग्स की ओर से, वर्क प्लेस अथॉरिटीज की ओर से क्या होना चाहिए? क्या पॉलिसीज होने चाहिए? क्या स्ट्रेटेजीज होने चाहिए? इस बारे में लीगल और इथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है? और एज ए एम्प्लॉय बीइंग द एक्टिव मेंबर हमें क्या करना होगा? इन सब के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग। दिमागी तौर पे, मन के लेवल पे हमें अच्छा लगना, कंफर्टेबल महसूस होना। इट enables people to cope with stresses of life
realize their abilities, learn well, work well and contribute to their community. देखिए, स्ट्रेसेस तो हम सबके लाइफ में होते हैं, पर हर एक का उससे डील करने का, उससे कोप करने का तरीका भी अलग होता है। तो जब हम कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से, हेल्दी तरीके से अपने स्ट्रेसेस को डील करना, उनसे कोप करना और उनसे बाहर आने में मदद करते हैं। सब में एबिलिटीज भी होती है और हम सब लोग कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रहे होते हैं। तो जब हमारी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है, वो हमें अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और उसमें विश्वास रखने की क्षमता देता है। हम नई नई चीजें सीखने में हमें मदद मिलती है। हमारे काम करने का तरीका और उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और इन जनरल अपने कम्युनिटी में हम अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो एज अ प्रोफेशनल हो, चाहे वो एज अ ह्यूमन बीइंग हो। हम बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, चाहे वो एज अ सिटीजन हो। और इसीलिए हमारी मेंटल हेल्थ ना केवल एट वर्क प्लेस बट हम जहां जहां कम्युनिटी में हैं और जो अलग अलग रोल्स निभा रहे हैं, चाहे वो परिवार में हो, सोसाइटी में हो, किसी प्रोफेशन में हो, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत अहम हिस्सा है। इट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? जैसे कि WHO ने कहा, इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो जो मेंटल हेल्थ है वो भी कुछ इसी प्रकार है। वो हमारे वेलबींग को दर्शाता है। केवल हमें मानसिक बीमारी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यस, इट इज वन कंपोनेंट, बट उसके भी परे हमें अच्छा महसूस होना, कंस्ट्रक्टिव महसूस होना, इफिशिएंट महसूस होना, चीजों के साथ डील करने के लिए एबल महसूस होना, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा है। और हर इंसान अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इस मेंटल हेल्थ को एक रेंज में महसूस करता है। क्या मतलब है जब मैं कह रही हूं कि इट्स इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑन अ कंटिन्यूम? जो चीज जज आपको बहुत ज्यादा खुशी दे दे, वो मुझे एवरेज खुशी देती हो। कोई चीज जो शायद आपको ज्यादा चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल लगे, वो मुझे आसान लगती हो और खुशी देती हो। तो ये हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है। और इसीलिए जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मेंटल हेल्थ को डिटरमिन करते हैं, तो इन्हें हम, इन डिटर्मिनेंट्स को, या आप कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स या 3 फैक्टर्स कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, जो एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल पर्सन. Social, attributed to the community around, and structural and systematic, so attributed to the physical world around and its components. जी, अब इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या आता है? हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। कई सारी मानसिक बीमारियां ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकती है, या अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को उस मानसिक अवस्था के लिए वल्नरेबल बना सकती है। उसमें सब्सटेंस अब्यूज है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है। तो अगर फैमिली में हिस्ट्री है मानसिक बीमारियों की या मेंटल हेल्थ इश्यूज की, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर आता है टेम्परामेंट या पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आपका
स्वभाव कैसा है, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हो, आपकी कोपिंग स्किल्स कैसे हैं, आप चीजों के प्रति क्या विश्वास रखते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपके अपने लाइफ के रूल्स और एटीट्यूड्स क्या है, आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स क्या है, आपके इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या आपको बहुत आसानी से रोना आ जाता है, क्या आप छोटी छोटी चीजों में पर्सनली एंगेज हो जाते हो, क्या होता है। तो आपके इमोशनल और सोशल स्किल्स, आप जब अकेलापन महसूस करते हो तो उसमें से उभरने की क्या स्किल्स आपके पास, आपकी रेजिलियंस कैसी है, आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हो, अपना सपोर्ट सिस्टम आप खड़ा करते हो या अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डैमेज करने वाली पुअर सोशल स्किल्स आप में है। कोपिंग स्किल्स, जैसे मैंने कहा, लाइफ में स्ट्रेस तो सबके है, लेकिन हम उन स्ट्रेस के साथ, चैलेंजेस के साथ कैसे कोप करते हैं। असर्टिवनेस, कि अगर मुझे कोई चीज ठीक नहीं लग रही है, चाहे वो मेरे घर में हो, मेरे कम्युनिटी में हो, तो मैं उसे कैसे व्यक्त करती हूँ या करता हूँ, मैं उसके प्रति अपने मत को कैसे प्रदर्शित करती हूँ या करता हूँ, या अगर जरूरत पड़ती है तो मैं क्या एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ। असर्टिवनेस, मेरा एजुकेशन, जी हाँ, और जब मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तब मैं केवल फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रही, उस विषय मानसिक आरोग्य के संबंधित एजुकेशन, अपने काम के जो स्किल्स है जिन्हें हम वोकेशनल स्किल्स कहते हैं, उनके प्रति एजुकेशन। तो जरूरी नहीं है कि मैंने वो फॉर्मल किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लिया, लेकिन क्या मैं प्रशिक्षित हूँ, क्या मैं स्किल्ड हूँ, एम आई एजुकेटेड। जैसे आज का ये जो कार्यक्रम है ये भी हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा है। तो एजुकेशन और मेरी आदतें, मेरी हैबिट्स, चाहे वो मेरे डेली हैबिट्स हो, सोना, जगना, खाना, पीना, काम करने की कुछ आदतें, या मेरे वर्क हैबिट्स हो, जैसे डेडलाइंस को मीट करना है, हम्म, या कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो, स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स लेना, गैम्बलिंग है, इंटरनेट की एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज, जिसको हम इंटरनेट एडिक्शन भी कहते हैं, क्या ऐसी कोई आदतें हैं। ये सारी आदतें, ये सारी चीजें एक साथ हमारी मेंटल हेल्थ को डिटरमिन करती है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे तो फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं। लोग कहते भैया आप बहुत अच्छे हो, सुलझे हुए इंसान हो, आपकी हमेशा मदद होती है, आपकी बड़ी क्लैरिटी है लाइफ में, मेरे सपने भी बिल्कुल रियलिस्टिक है, कभी मैंने बहुत ऊंचे सपने नहीं देखे, और ऐसा भी नहीं रहा कि मैंने कभी सपने ही ना देखे, मेरे अपने सपने हैं और उनके तरफ मैं अपना विकास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं इमोशनली भी फिट महसूस करती हूँ, रोना नहीं आता है आसानी से, या गुस्से पे भी कंट्रोल हो जाता है, मेरे काफी दोस्त है, एक मेरा सोशल सर्कल है। ये सब कुछ होने के बावजूद मुझे कोई नशा नहीं है, कोई गलत बीमारियां भी नहीं है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है शायद मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि कहीं कुछ तो गलत है, कभी कभी कुछ तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वी आर ए सोशल एनिमल।
तो अगर भी मेरे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में मुझे लगता है मेरी समझ में ठीक है, पर बाकी दो कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेरे मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे अगला है सोशल फैक्टर्स, पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। क्या मेरी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पेरेंटिंग हुई है, या क्या मुझे बचपन में बहुत सीवियर एक्सट्रीम पनिशमेंट्स मिले हैं, या क्या मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में इतनी छूट मिली है कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं हो पाया हो, या क्या ऐसा हुआ है कि पेरेंटिंग तो अच्छा रहा लेकिन कुछ फिर भी आउटसाइड आउटसाइड द फैमिली कुछ बड़े ट्रोमैटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मुझे आए हैं, जैसे चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, लॉस ऑफ वेरी क्लोज्ड वन हो सकता है, एटसेट्रा। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, क्या उन्हें इस बारे में उनका कंट्रीब्यूशन है, इसका एहसास है। आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपकी स्कूल हो, आपकी काम की जगह हो, आपके आस पड़ोसी हो, क्या उनमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस है? आपको लगता है कि क्या उनमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, या आपको लगता है कि नहीं, मुझे हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है या डिस्क्रिमिनेशन? आपको क्या लगता है? आपका अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ सपोर्ट सिस्टम बना है क्या? एक अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बने हैं, या उसमें भी आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस है? मोरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअल के भी मोरल वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम होते हैं, वैसे ही आपकी कम्युनिटी के, आपके फैमिली के, आपके वर्क प्लेस का कल्चर होता है, हर एक के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो जब मैं सोशल फैक्टर्स में मोरल वैल्यूज और बिलीफ की बात कर रही हूँ, तो वहां मैं हेड ऑफ द फैमिली की मोरल वैल्यूज और बिलीफ क्या है, एज अ फैमिली वो क्या सोचते हैं, उस कम्युनिटी की क्या बिलीफ सिस्टम्स है, क्या कल्चरल आइडेंटिटीज है, जहां आप काम कर रहे हैं उस काम की जगह में जो अथॉरिटीज है, जो डिसीजन मेकर्स है, उनके बिलीफ सिस्टम्स क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि आपके वर्क प्लेस पॉलिसीज क्या होंगे, आपका वर्क कल्चर क्या होगा, आपके यहाँ पे वर्क कम्युनिटी किस तरीके से रहेगी। इसीलिए मोरल वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द डिसीजन मेकर्स एट योर वर्क प्लेस और विद इन योर कम्युनिटी। कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने कहा कि जब दो फैमिलीज में शादी होती है, लड़की ब्याह कर लड़के के घर जाती है, या दोनों एक साथ एक घर में रहना शुरू करते हैं, तो कई बार कल्चरल प्रैक्टिसेस के डिफरेंसेस आते हैं। खाना बनाने का तरीका हो, त्योहार मनाने का तरीका हो। जब हम एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस में शिफ्ट करते हैं, तो वहां भी कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट होते हैं। एक ऑफिस का वर्क कल्चर और दूसरे ऑफिस का वर्क कल्चर अलग अलग रहेगा। तो कुछ हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, कुछ हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं, कुछ हमें कम कंफर्टेबल लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार जापानीज कंपनीज में या जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क कल्चर के बारे में बहुत बात की जाती है, बताया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है कि कैसे जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कल्चर एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, उनके मेंटल हेल्थ या उनके हेल्थ पे फोकस किया जाता है। तो कंट्री के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस वेरी होते हैं। वर्क कल्चर एंड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, लोग जनरली डिफरेंशिएट करते हैं सरकारी जगह में काम करने का तरीका और गैर सरकारी या प्राइवेट कंपनीज में या कॉरपोरेट कंपनीज में काम करने का तरीका। लेकिन ये डिफरेंस इतना सा ही नहीं है, या ये डिफरेंस मैं कहूंगी कि 100% वैलिड भी नहीं है, क्योंकि आजकल कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कॉरपोरेट कंपनी की तरह सिस्टमेटाइज तरीके से काम कल्चर को एडप्ट कर रही है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की बात नहीं है,
ये अलग अलग वर्क प्लेसेस में, मतलब अब मान के चले कि क्या वो हॉस्पिटल सेटअप है, क्या वो कोर्ट सेटअप है, क्या वो वेटरनरी हॉस्पिटल है, ह्यूमन हॉस्पिटल्स है, क्या वो इमरजेंसी सर्विस वाला है, या इन जनरल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज वाला है, क्या वो स्कूल सेटअप है, क्या वो सर्विस डिलीवरी वाला सेटअप है। तो अलग अलग टाइप के वर्क प्लेस के हिसाब से उनका वर्क कल्चर, उनका वर्क एनवायरनमेंट अलग होगा। साथ ही साथ आपके क्लाइंट्स कौन है। अगर आपकी लोकल इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो शायद वर्क एनवायरनमेंट में, जहां हम वर्क टाइमिंग की बात करेंगे, वो शायद हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हो। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो फिर आपके वर्किंग आवर्स उस हिसाब से डे नाइट में चेंज हो सकते हैं, काम शिफ्ट्स में हो सकता है। सो अगेन वर्क कल्चर एंड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, और इसमें ये भी आता है शिफ्ट, वर्क इन शिफ्ट, वर्किंग फॉर लेट नाइट, एक्सेट्रा। सेफ्टी इन नेबरहुड, आप सब जानते ही होंगे कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का रेप एंड मर्डर केस जो भी चल रहा है और जिस पे अभी सुनवाई भी की जा रही है, तो जब ये हो रहा है क्यों इतने डॉक्टर्स परेशान हैं, क्यों हम सबका दिल दहल रहा है, और ये वर्क प्लेस में हुआ, और इसीलिए हम इस केस के बारे में आज थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं। क्या लोग अपने वर्क प्लेस में या जहां वो रह रहे हैं, जिस नेबरहुड से वो आ रहे हैं, क्या वहां वो सेफ्टी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी उनके मेंटल हेल्थ को डिसाइड करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक डिटर्मिनेंट्स, जिसमें आते हैं डिसीज आउटब्रेक। अब जैसे कोविड महामारी आई, हम सबका काम करने का तरीका बदल गया, हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज्यादा वर्कलोड आया, काम करना मैंडेटरी हो रहा था, छुट्टियां नहीं मिल रही थी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वर्किंग आवर्स बढ़ गए थे, खुद के हेल्थ के लिए रिस्क है ये जानते हुए काम करना पड़ रहा था। मौसम मई में, मतलब जो मौसम था पूरा गर्मी और फिर बारिश का मौसम, तो उस वजह से भी कई बार वो सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेते हुए परेशानियां हो रही थी। तो कई सारे जो डिसीज आउटब्रेक्स होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस को डिफाइन करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल काम से काम बंद कर दिया गया और उन्हें कहा गया आप घर से काम कीजिए, तो उन्हें एक तरीके से रिलीफ मिला कि चलो इस महामारी में जहां सब लोग कह रहे कि घर के अंदर रहो, हमें काम पे नहीं जाना पड़ रहा है, ये एक रिलीफ था। बट एट द सेम टाइम वर्किंग फ्रॉम होम के अपने अलग लिमिटेशंस और चैलेंजेस थे जो मेंटल हेल्थ पे असर कर रहे थे, राइट। तो एक डिसीज आउटब्रेक कोविड का अगर हम एग्जांपल ले तो उसका भी हम सब के मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हुआ है। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसका भी असर ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे हुआ है। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और उनके लव्ड वंस काफी डीप पेन, ग्रीफ और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, उन्हें अलग तरीके की चैलेंजेस कोविड जैसी आउटब्रेक्स में आई हैं। या अगर हम कह लें कि क्लाइमेट क्राइसिस जहाँ होता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया हो या कहीं क्या कहेंगे हम उसको, साइक्लोन आ गया हो, तो ऐसी जगह पे भी अचानक जब सारे सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं, हेल्थ सिस्टम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, घर टूट गए हैं, डिजास्टर सिचुएशन है, अनश्योरिटीज है, क्या होने वाला है पता नहीं, ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ पे असर होता है। कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रिसोर्सेस कम है, मदद तो करनी है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स अगर हैं तो वर्कलोड बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, और वहां पे आराम करने के उस समय में आराम करने वाली सिचुएशन नहीं होती है। तो यस, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज हो सकती है, जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कहीं मान के चलिए सिविल वॉर हो गया, किसी कंट्री का किसी कंट्री को दूसरे कंट्री ने टेक ओवर कर लिया। आप में से कितने लोगों ने द टर्मिनल मूवी देखी है? अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये चैट बॉक्स में नाम मैं मूवी का टाइप कर रही हूं।
तो ये मूवी ना बड़ी मुझे अच्छी लगी इस नजरिए से कि एक इंसान अपने देश से फ्लाइट लेकर एक दूसरे देश में आता है किसी काम के लिए, और जब वो उस देश में उतरता है तो उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अब उसका देश किसी और देश ने टेक ओवर कर लिया, अब उसके देश का अस्तित्व ही नहीं है अलग से, और इसीलिए उसका पासवर्ड इनवैलिड हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में वो दूसरे देश में एंट्री नहीं कर सकता, और जब तक उसका देश या जो प्रोसीजरल होता है पासपोर्ट को वैलिड कराने का वो जब तक नहीं होता, वो ये टर्मिनल छोड़ के नहीं जा सकता, ना वो वापस जा सकता है, ना वो टर्मिनल से बाहर इस देश में जा सकता। तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया है कि कैसे वो टर्मिनल में स्ट्रेस होता है, आइडेंटिटी ना, कंट्री सिटीजनशिप की आइडेंटिटी का लॉस हो गया, तो क्या करना है, आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, काम जो करने आए थे वो भी नहीं होगा, घर भी नहीं लौट पा रहे हैं, तो पैसे नहीं है, खाना खाना है, सरवाइव करना है। तो इन सारे सिचुएशन में बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि वो कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, कैसे फिर सरवाइव करते हैं, कैसे वहां पे दोस्त बनाते हैं, और कैसे उस ड्यूरेशन 9 महीने का कुछ पीरियड है उसमें अपने आप को खुश रखते हुए सरवाइव कर। Of course, this is not an example of mental health at workplace, but this is an example of mental health जहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज आ गई या कोई जियोपॉलिटिकल इमरजेंसीज आ गई, और कैसे स्ट्रेस होता है और कैसे उसमें से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जिसे कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियां बच्चे एक जगह से दूसरे जगह लाके बेचे जाते हैं, लोग बेचे जाते हैं, उन्हें इलीगल बिजनेसेस में कामों में लगाया जाता है, एंड इट बिकम्स अ बिग शॉक फॉर देम। इमेजिन कीजिए एक लड़की जो ये सोच के अपने घर से निकली थी कि मैं कुछ एक बड़ा उम्दा और रिस्पेक्ट वाला काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने फैमिली को हेल्प करूंगी, उसे अगर एक स्टिग्मेटाइज्ड प्रोफेशन में जबरदस्ती ढकेला जा रहा हो तो उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होता। जहां हम कमर्शियल सेक्स वर्कर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम चाइल्डहुड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग की और चिल्ड्रन अब्यूज की बात करें, फिर क्लाइमेट क्राइसिस है, जैसे मैंने कहा डिजास्टर्स सिचुएशंस हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं साइक्लोन्स आ गए, कहीं भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया, ऐसे कई सारे क्लाइमेट क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ को दर्शाने वाले अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है वर्क प्लेस। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, क्या लगता है आपको क्या होता है जब हम खुशी खुशी कंफर्टेबल तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। काम फटाफट होता है। चलिए मैं बोलती हूँ, आप चाहे तो थम्स अप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है एंड यू वर्क वेल, यू वर्क बेटर। प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, यू वर्क बेटर, जी हाँ बिल्कुल। तो वर्क इफिशियंसी बढ़ती है। वर्क इफिशियंसी बढ़ती है का क्या मतलब है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम काफी काम करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको और खूबसूरत तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं अच्छी मूड में हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा है, मुझे काम करने में एक्साइटमेंट लग रही है, मैं काम अपना एंजॉय कर रही हूँ, और ऐसे में अगर मेरे यहाँ कोई इंस्पेक्शन होना है तो क्या होगा? मैं मेरी सारी फाइलें ठीक रखूंगी, उसका लेबलिंग करूंगी, जरूरत पड़ेगा तो उसको ठीक से और सजाऊंगी, तो वही आई ऐड क्रिएटिविटी टू इट। अगर मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, मुझे स्ट्रेस लग रहा है, परेशान हूं, और ऐसे में अगर इंस्पेक्शन आ जाता है तो क्या होता है? फटाफट फटाफट सारे पेपर्स रख दिए, उसमें पंच करके एक सीक्वेंस बना दिया और जमा। आई मे नॉट, ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि कंपल्सरीली 100%, मैं कह रही हूँ कि आई मे नॉट थिंक कि मैं इसमें स्टिकर कैसे लगाऊं, इसमें लेबल कैसे लगाऊं, इसमें ये एडिशनल क्रिएटिविटी वाली चीजें शायद मैं उसमें ना करूं, जो बेयर मिनिमम है, बिकॉज वो नीडेड है, रिक्वायर्ड है, उसमें ऑप्शन नहीं है, तो उतना करके कैसे तैसे करके मैं खत्म कर दूंगी। हाँ, तो मेरे अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो मेरी वर्क इफिशियंसी बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी,
और मेरे टाइमली टारगेट्स अचीव होते हैं, चाहे वो मेरे टाइमली टारगेट्स हो या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के टाइमली टारगेट्स हो, वो अचीव होते हैं। और ये सब करते हुए मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी महसूस होता है कि जो मैंने किया वो अच्छा किया, जो मैंने कंट्रीब्यूट किया वो अच्छा किया, आई एम सेटिस्फाइड। और मेरे काम करने में कंसिस्टेंसी रहती है। इट इज वेरी अनलाइकली कि मैंने आज कर दिया कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा अगर मेरी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है। और इस वजह से एक म्यूचुअल होलिस्टिक ग्रोथ होती है, मेरी भी ग्रोथ होती है, मेरी कोलीग्स की ग्रोथ होती है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई द मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी क्रूशियल एट द वर्क प्लेस। सॉरी, नाउ इफ व्हाट इफ देर इज अ चैलेंज विद द मेंटल हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल, कैसे पता करें? उनकी वर्क इफिशियंसी कम हो जाएगी, वो अपने डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे, कैसे तैसे काम करके खत्म करेंगे, कई बार उनके काम ही पूरे नहीं हो पाएंगे, ओवर टाइम हो सकता है उनको करना पड़े, टायर्डनेस महसूस हो, इरिटेबिलिटी हो, है ना? या कई बार वर्क एब्सेंटिज्म होने लगता है कि जब मुझे लगता है कि ये आई कांट टेक इट, आई कांट बेयर इट, मुझसे नहीं होगा, तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। और फिर कई बार उसको पता होता है कि भाई ये जरूरी है, करना है, बट फिर भी उनकी बॉडी उन्हें साथ नहीं देती और देन दे गो फॉर एब्सेंटिज्म या बीमार पड़ते हैं बार बार। अगर वो काम कर भी ले तो उसमें कई बार फ्रिक्वेंट एरर्स होने लगते हैं। और अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, तो ऐसी जगह पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जानलेवा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। डिले इन वर्क, काम लेट होना या काम की वर्क प्लेस पे लेट पहुंचना, रिड्यूस्ड सोशलाइजेशन। कई बार ऐसे लोग, अगर आपके आजू बाजू में आपने किसी किसी को देखा होगा कि पहले तो काफी अच्छे से सोशलाइज भी होते थे, बात कर लेते थे, बट धीरे धीरे ये लोग अपने आप में खोने लगते हैं, परेशान से रहते हैं, और जो हाय हेलो करना है, सोशलाइज होना है, चार लोगों में मिलना जुलना है, अपने आप में इनका कम हो जाता है। या अगर मिल भी ले, जबरदस्ती बैठ भी ले, तो एक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो रिड्यूस्ड सोशलाइजेशन। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें कहते हैं कि शायद इस इंसान को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे एक पेशेंट है, वो अभी 45 ईयर्स के हैं, वो एक इंस्टीट्यूट में फैकल्टी है इंजीनियरिंग के, और पिछले 15 सालों से बाइपोलर मूड डिसऑर्डर मैनिया के पेशेंट है, उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज की भी उन्हें तकलीफ है, और उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक बार जब उन्होंने अपने ये दिल की बात, अपने कंडीशन के बारे में अपने काफी करीबी कोलीग जिस पे वो काफी विश्वास करते थे, जब उन्होंने वो शेयर की, और उन्हें कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि उनकी जो जो भी कुछ बातें उन्होंने अपने इलनेस के बारे में बताई थी, वो रिकॉर्ड की गई और वो उनके ऑफिस के बाकी सारे कलीग्स को सुनाई गई। क्या लगता है आपको, क्या ये जरूरी था? अगर आप कहेंगे कि हाँ, शायद सबको पता हो तो सब उन्हें एक सोशल सपोर्ट देंगे, तो बताना तो जरूरी है। एक बात तो है, पर क्या ये इस तरीके से बताना जरूरी था, विदाउट कंसेंट? क्या इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे और गहरा असर नहीं पड़ा होगा? इस केस में पड़ा है, क्योंकि उन्होंने वो मेरे साथ साझा किया है, मुझे बताया कि मैडम जब ऐसे हुआ और जब मुझे बुरा लगा, जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा, आई फील्ट वेरी सैड कि मैंने इतना विश्वास से दिया था तो क्यों बताया, नहीं बताना, अगर मुझे बताना होता तो मैं ही बता देता। मुझे एम्बैरेसिंग फील होता है, मुझे लगता है अब लोग मुझे उसी नजरिए से देख रहे हैं, और उस वजह से और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने लगे। ठीक है, सो कीप दिस, आई वुड रिक्वेस्ट, कीप दिस एग्जाम्पल इन माइंड एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजीज टू एनहांस मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस? और ये जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है इस एंगल से मैं बता रही हूँ। फर्स्ट, कैन वी हैव फ्यू रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल सेशंस? जैसे कुछ लोग होते हैं, वो अगर उनका मॉर्निंग आवर्स में है या जो भी उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब में अगर वो मैच करता है, तो 8 आवर्स ऑफ वर्किंग में वो ½ एन आवर ऑफ योगा या मेडिटेशन सेशन सारे स्टाफ और
एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी रखते हैं, या दे मेक श्योर दैट देयर विल बी अ time to time that they will be allowed to have healthy drink. It can be some kada, it can be plain water, but on a regular basis, or they will have some socialization time. तो क्या इस तरीके की कुछ मेंटल हेल्थ एनहांसिंग स्ट्रेटेजीज या कुछ वर्क प्लेस स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस क्या हम कर सकते हैं? इस वन। सेकंड, इंटरमिटेंट टीम बिल्डिंग एंड लाइफ स्किल एक्टिविटीज। आपने देखा होगा कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट इस तरीके की एक्टिविटीज करते रहते हैं। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज होते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होते हैं, लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज होते हैं, और ये देखा गया है कि इस तरीके के एक्टिविटीज की वजह से उनके एम्प्लॉयज की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स जो प्रोफेशनल लेवल पे होती है वो बनने में भी मदद होती है। प्लस अगर टीम में कोई लिथार्जी आ गई हो, टीम की इफिशियंसी अगर कम हो रही हो, तो वो बढ़ने में मदद होती है। और एक इंसाइट भी मिलता है कि मेरा बिहेवियर कहाँ गलत हो रहा है, हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज इट। क्योंकि वो एक टीम वर्क होता है, अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स। कैन वी हैव पोजिशंस लाइक डाइवर्सिटी हेड्स और सोशियो कल्चरल ऑफिसर्स? देखिए, मैं जब अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी तो वहां से मुझे ये टर्मिनोलॉजीज पता चले, डाइवर्सिटी हेड्स एंड सोशियो कल्चरल ऑफिसर। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़े कॉरपोरेट कंपनीज में इस तरीके के पोजीशंस होते हैं, जहां पीपल विद डिसेबिलिटीज को अभी जॉब ऑफर किए जा रहे हो, या जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, चाहे वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, एंड इफ दे फील दैट दे आर मार्जिनलाइज्ड, एंड इफ दे फील कि नहीं, हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये डाइवर्सिटी हेड्स या सोशियो कल्चरल ऑफिसर्स उन्हें उस एनवायरनमेंट में मर्ज होने में, उन्हें कंफर्टेबल करवाने में, महसूस करवाने में मदद करते हैं। उसके लिए जो भी जरूरी पॉलिसीज है, एडवोकेसी है, या कुछ अगर एक्टिविटीज लेनी है, तो वो सारी चीजें डाइवर्सिटी हेड्स या सोशियो कल्चरल ऑफिसर्स करते हैं। तो क्या हम इस तरीके की कोई पोजीशंस रख सकते हैं? सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम है, बहुत जरूरी है। मैंने अपने इस पेशेंट को पूछा कि क्या आपको लगता है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें अबाउट मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, जिसमें हम इस तरीके के इश्यूज बताएं कि भाई किसी के बारे, कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की एक चीज होती है, अगर आपको किसी के बारे में कोई इंसान खुद होके बता रहा है अपने आप के बारे में, तो आप उनके कंसेंट के बगैर नहीं शेयर करना है। या उनको लगता है कि लोग अब मेरी तरफ देख के उसी तरीके के चेहरे बनाते हैं, बना बना के मुझे चिढ़ाते हैं, तो क्या, कैसे रिएक्ट करना है? अगर किसी को मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है तो क्या करना चाहिए? हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए हेल्दी एम्प्लॉय एंड एज ए हेल्दी सिटीजन? हम क्या कर सकते हैं? क्या वो जानबूझ के बीमार है या उसका नाटक कर रहे हैं एम्पैथी पाने के लिए? कई बार ये लोगों को लगता है, ये मिथ होता है। तो इसमें से बाहर आने के लिए सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि जो इंसान जिस इंसान को मेंटल इलनेस है या जो इंसान मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम बने, एट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कम हो, और वो मोर एफिशिएंट, एम्पावर्ड, कंट्रोल और हेल्दी, कंफर्टेबल महसूस कर। साइको सोशल इंटरवेंशन टीम, ये जो हमने अभी तक के जो ऊपर के 4 देखे हैं, ये जो है ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज है कि भाई हमारे यहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे, इसके लिए साइको सोशल इंटरवेंशन टीम इसलिए होनी चाहिए कि मान के चलिए कि सारे आपने स्ट्रेटेजीज अपना लिए, इसके बावजूद भी अगर किसी को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, हो सकता है कि उनके अपने लाइफ के कुछ इश्यूज है जो वो डील नहीं कर पा रहे होंगे, जिसका इफेक्ट वर्क प्लेस पे हो रहा है। हो सकता है कि उनके लाइफ में सच में कई सारे चैलेंजेस है और जो वो बयान नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि उनका सपोर्ट सिस्टम घर में और बाकी कम्युनिटी में कम है, और जिसके वजह से उनका वर्क प्लेस इफिशियंसी कम हो रहा है। ऐसे केस में ये साइको सोशल इंटरवेंशन टीम उन्हें रिक्वायर्ड गाइडेंस, काउंसलिंग, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग करे, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हुए उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट एनहांस करे और
वर्क प्लेस की ओवरऑल इफिशियंसी को बढ़ाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखें तो सिमिलर चीजें हो सकती, कुछ हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल्स या हेल्दी लाइफ हैबिट्स अपनाने की जरूरत है। कुछ ऑफिसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे आप थोड़ी देर भी कर्सर हिलाए कंप्यूटर से दूर नहीं रह सकते। कई सारे आईटी कंपनीज में ये होता है, तो उनको लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। पर कई लोगों को वो जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी वो लोग मोबाइल में लेके बैठते हैं। तो क्या हम इंटरनेट और डिवाइसेस के यूज को लेके कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं? फिर अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस, कॉग्निटिव एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन जैसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई स्किल्स कमी है और मैं नहीं अच्छे से कोप कर पा रहा हूँ, तो खुद ही स्किल ट्रेनिंग या कुछ एडिशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, जिससे आपके प्रोफेशनल स्किल्स एज वेल एज पर्सनल स्किल्स इम्प्रूव हो, क्या आप ऐसा कुछ अटेंड कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लो लग रहा है, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसे किसी के साथ साझा कीजिए। अगर आपकी वर्क प्लेस आपके लिए वो एक ट्रांसपेरेंट साइको सोशल इंटरवेंशन टीम की सपोर्ट सिस्टम देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको वो कहीं ना कहीं जाके मदद लेनी जरूरी है। सो दैट इज व्हाट एज एन इंडिविजुअल वी कैन डू। अब ये जो पॉलिसीज होते हैं, जो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए या गवर्नमेंट उस स्टेट का या उस कंट्री का गवर्नमेंट बनाए, इन पॉलिसीज के, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो रिस्क रिड्यूस करना, मेंटल इलनेस होने के या मेंटल इलनेस के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वर्क रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंसेस रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, सेफ्टी एंड रिस्क रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, उनको कम करना। सो रिड्यूस द रिस्क, इंक्रीज रेजिलियंस। ये देखिए, उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में, बट उसमें से भी उभर के कैसे बाहर आना है और फिर से एक नई जिंदगी जीना है, उसके लिए रेजिलियंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो एंड डेवलप सपोर्टिव एनवायरनमेंट, और ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, तो हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो वो कैसे डेवलप किया जाए, ये तीन मेजर कुछ ग्रुप में, आई एम सॉरी, कुछ चैट में शायद लिखा है, मैं समझ नहीं पाई। Ma'am, you continue with the talk. I will look through and let you know. I don't think it is कुछ related. मजदूर मर गया, फिर उसकी लाश को निकालने के लिए बिल को काटना पड़ा था, ऐसा कुछ। No, no, that's what. Ma'am, ignore कीजिए. You continue with the talk. I will look into the Okay. chat. No, it is Sure, sure. Okay, please. If that is something related to this presentation and if they want to ask something or convey something, please let us know. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you Yes. please continue. Sorry for the Sure, interruption. Look into it. sure. Thank you. फिर तो ये करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल ट्रेनिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग हो सकता है, प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग के ऊपर स्किल ट्रेनिंग हो सकता है। अब जैसे जब कोविड का जमाना आया और हम सबको ऑनलाइन में जाना पड़ा, तो कई स्कूल्स में प्रॉपर इसका एक ओरिएंटेशन दिया गया कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे, क्या करने वाले हैं, कौन से एप्स है, बट कई जगह वो ओरिएंटेशन नहीं दिया गया, और जिस वजह से ट्रायल एंड एरर करने में या नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में जो टाइम जाता था, उसमें कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए, स्ट्रेस हुआ, फ्रस्ट्रेशन आया, ये भी हुआ है। हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमें ये पता चला। तो स्किल ट्रेनिंग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सोशल ऑडिट। देखिए, हम कितना ही कहे कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज है तो ये आपको साझा करना है, बताना है, बट फिर भी बिकॉज मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और इलनेस को लेके कई सारे स्टिग्मा है, डर है, लोगों को लगता है कि मुझे जॉब से निकाल देंगे, तो ये सारे इनसिक्योरिटीज है, और इसीलिए लोग नहीं बता। तो एज एन एट अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या एट अ स्टेट लेवल, हमें रेगुलर मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट की एक टीम होनी चाहिए, जिसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो ये दे शुड एंश्योर कि
बिना किसी बायस के, बिना जजमेंटल हुए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से ये सोशल ऑडिट और मॉनिटरिंग किया गया है। जैसे एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं कॉलेजेस में, उस तरीके के मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने वाले या उनको मॉनिटर करने वाले रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सोशल ऑडिट टीम्स और कम्युनिटीज होने चाहिए, या कुछ उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज, आईसीसी, कई सारे, जहां तक मुझे पता है, मैं ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस में इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज होती है। कुछ ऐसी कंप्लेंट जो आपकी कलीग्स के बारे में आपकी है, आपके स्टूडेंट्स के आपके प्रति है, आपको आपके स्टूडेंट्स के प्रति है, सबॉर्डिनेट्स के प्रति है, ऑथोरिटीज के प्रति है, तो ये कंप्लेंट्स आप हर चीज कोर्ट में नहीं लेकर जाते। एवरीथिंग डजंट कम अंडर दैट लीगल फ्रेमवर्क, बट यस इट कम्स अंडर द इथिकल कंसिडरेशन। तो उसके लिए ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज होते हैं, और जो ऐसे कंप्लेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जानकारी लेते हैं, और जो गलत हो रहा है उसे सुधारने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार ये देखा गया है कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज हैं, ये किसी हायर अथॉरिटी के सारे सबॉर्डिनेट्स की बनी हुई होती है। तो ऐसे केस में अगर कंप्लेंट हाईएस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट है, तो अनबायस्ड एक्शन होना या अनबायस्ड इंक्वायरी होना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि होता ही नहीं है, या मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमेशा वो बायस्ड ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द वर्क कल्चर, डिपेंडिंग ऑन द वर्क प्लेस, बट थोड़ा मुश्किलें आती है, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए जब ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज बनाई जाती है, तो इसमें एक्सटर्नल मेंबर्स को लेना जरूरी है। फिर किस किस चीज की कंप्लेंट है उसके अनुसार आपको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या स्पेशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले भी मेंबर्स उसमें ऐड समय समय पे करने पड़ सकते हैं। लीगल एडवाइजर्स होना कभी कभी जरूरी हो जाता है। रादर टू माय नॉलेज सारे आईसीसीज में एक लीगल एडवाइजर भी होता है और होना भी चाहिए। तो आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किस तरीके से बना रहे हैं, उनके कौन कौन मेंबर्स हैं, उन्हें कितना फ्रीडम दिया गया है, उनके डिसीजन को या उनके एडवाइस का कितना रिस्पेक्ट किया गया है, ये बहुत मैटर करता है, एंड दैट हैज टू बी टेकन केयर। अनदर इज रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। अगर मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो क्या उनके लिए रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे मैडम ने बोला कि आज इस सेशन में हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हैं। सच पूछिए तो आई एम अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट। इतने सालों में हमने अलग अलग डिसेबिलिटीज के लोगों के साथ काम किया है। हमने भी कॉन्फ्रेंसेस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को बुलाया है, उनकी मदद ली है, पर समहाउ आज ये बात मेरे दिमाग से हट गई थी। तो जब मैडम ने ये बात की तो आई वॉज रियली हैप्पी, एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, राइट। और ये एक बात हुई, ये एक एग्जाम्पल हुई, ऐसे कई रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी जो अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपके ऑफिस में कोई पीपल विद डिसेबिलिटीज है जो काम करते हैं? क्या लगता है आपको कि उन्हें कैसा महसूस होता है? क्या आपने कभी उनके साथ बात की? तो वो मुझे कह रही थी कि हमारे यहाँ 2 लोग हैं जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट, कंप्लीट डेफनेस और स्पीच प्रॉब्लम है, डेफ एंड डम कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्हें कभी मैंने दुखी नहीं देखा, उनका काम भी चलता रहता है, वो खुश रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, जोक्स भी मारते हैं वगैरह। हाँ, बट हमारे यहाँ एक कोई है जो व्हील चेयर पे आती है, उनके चेहरे पे मुझे कई बार नाराजगी या मासूमियत दिखती है। देन वी टॉक्ड अबाउट इट कि क्या हो सकता है, तो क्या हमें बात करना चाहिए, किस एंगल से बात करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वगैरह, हमने बात किया। तो ये हुआ रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए ही हो, ये LGBTQ+ कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ हो। अगर वो हमारे वर्क प्लेस में है तो उनके लिए होनी चाहिए।
अगर हमारे यहाँ कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो अभी जॉब में कंटिन्यू कर रही है, अभी छुट्टी पे नहीं गई है, उनके लिए होनी चाहिए। अगर किसी की आवाज जैसे बारीक है, उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, बट लोग हंसते हैं, तो उनके लिए भी अगर रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस कुछ है तो वो होने चाहिए। भले ही वो 40% डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी कट ऑफ या बेंचमार्क डिसेबिलिटी तक ना पहुंचे, बट फिर भी अगर उन्हें जरूरत है, जिन किसी को भी जरूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी है नहीं है, कोई सर्टिफिकेट स्पेशल नोट करने वाला है या नहीं है, जिन जिन को जरूरत है, अगर उन्हें हेल्दी होने के लिए, मेंटली फिट, इफेक्टिव, प्रोफिशिएंट होने के लिए अगर कुछ छोटे मोटे अकोमोडेशंस और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है तो वो होना चाहिए। रेफरल सिस्टम, कई बार देखिए, जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जा सके। खासकर अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, अगर उनका सालाना टर्नओवर कम है, तो ये हर जगह पॉसिबल शायद नहीं होगा कि आप एक अलग से एम्प्लॉय हायर करें। तो फिर इस तरीके से तो एक आपको लॉयर हायर करना होगा, कई सारे लोग आपको हायर करना, एक डॉक्टर हायर करने होंगे। तो ऐसे समय पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की बाहर में रेफरल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके यहाँ कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, अगर आपकी टीम है, तो कई बार एम्प्लॉय जो है डरता है उन्हें अपने दिल की बात बताने से, कि अगर मेरी बात कहीं लीक हो गई तो, अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ किसी को कह दिया तो इसीलिए कई बार एक्सटर्नल रेफरल सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो होने भी चाहिए। फिर लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है, कि अगर किसी के बारे में, किसी के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में आपको पता चले, या अगर उन्हें इलनेस है ये आपको पता चले, उसके बावजूद उनके साथ उनकी प्रोफेशनल डिग्निटी, उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी, ह्यूमन एज ए ह्यूमन उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाना चाहिए। उन्हें उनके साथ ह्यूमिलिएशन के साथ बात करना या उनके साथ इरिटेट होके बात करना, इट इज अनएथिकल। हमारे एक, मैं किसी ऑफिस में जहां थी, वहां पर हमारे यहाँ एक स्टाफ थी जो परमानेंट थी, अम, लेकिन उन्हें स्ट्रोक अटैक आया था 2 साल पहले, और उसमें से रिकवर होने में उन्हें काफी समय लग गया। और अभी भी जब वो ऑफिस आती थी तो उनकी स्पीच क्लियर नहीं थी, कॉग्निटिव डिटेरियोरेशन सिग्निफिकेंट था। तो वो जो पहले वो काफी अच्छे हायर पोजीशन पे थी और काफी जिम्मेदारी वाले काम करती थी, बट अब वो एक सिंपल फाइल को मेंटेन करना भी उनके लिए कॉग्निटिवली बहुत चैलेंज हो गया था। तो पर वो, चूंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय थी और एक्सेप्टेंस हमारा एक, एज पर द लॉ शी कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी डिसकंटिन्यू, तो वो आती भी थी। एंड शी वॉज वेरी इंथुजियास्टिक कि मुझे कुछ तो काम दीजिए ना, मुझे काम करना है, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अ मैटर ऑफ हर सेल्फ स्टीम कि मैं पहले तो इतना जिम्मेदारी वाले काम करती। आई हैड सीन फ्यू पीपल टू बी वेरी एम्पथेटिक, उन्हें छोटे मोटे काम देना, कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, विद अ बैकअप प्लान कि अगर वो समय में ना भी कर पाए तो भी कोई और वो रेडी रखेगा, तो काम भी हैम्पर नहीं होगा, विद सम चेंजेस। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके साथ, कि आप जब थे बड़े पोस्ट पे तो कैसे हमें ट्रीट करती थी, भगवान सबको देता है, इस तरीके के डायलॉग सुना के उन्हें डिमोरलाइज किया जाता था। सी, हर एक की अपनी इंसाइट आती है, वो अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी हमने डिस्कस की है, इंश्योर सेफ्टी। हमारे एक दोस्त है जिनका कार के पार्ट्स का प्रोडक्शन का एक, क्या कहेंगे हम, फैक्ट्री थी। तो वो हमेशा कहते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे लेबर्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते सेफ्टी चीजों को, जैसे उनके वो सेफ्टी बूट्स होते हैं, सेफ्टी ग्लोव्स होते हैं, तो कहते मैंने देखा मेरे लेबर नहीं यूज करते। देन ही हैड अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर दोज लेबर्स, मेड देम अंडरस्टैंड कि आपकी सेफ्टी क्यों जरूरी है, एंड देन ही मेड इट एज ए रिचुअल कि हर दशहरे पे हम अपने सेफ्टी मटेरियल का भी पूजा करेंगे, बिकॉज समटाइम्स अटैचिंग इट अ कल्चरल एंड रिलीजियस मीनिंग हेल्प्स कि लोग उसको फॉलो करें। And that's how we ensured the safety. It can be a physical safety, mental safety, sexual safety, all.
आई रिमेम्बर जब मैं ठाणे सिविल हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, उसके बाद सीधी टेरेस थी। तो एक शाम को 5 बजे के करीब एक लड़का आया और भागते हुए टेरेस पे गया। और जब हम दो फीमेल उसको फॉलो की, क्योंकि इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, वो हमारे जान पहचान वाला नहीं था, वी रियलाइज कि वो ऊपर जाके कुछ ऐसे लेट गया एंड ही वाज नॉट फ्रॉम आवर टीम और एनीथिंग। टेरेस पे नीचे लेट गया, तो हमें ये भी लगा कि शायद ही इज ड्रंक्ड, ही हैज कंज्यूम्ड अल्कोहल। तो हमने तुरंत अपने जो अथॉरिटी थे उन्हें इन्फॉर्म किया, क्योंकि कई सारी फीमेल स्टाफ भी वहां होती थी, एंड दे इमीडिएटली टुक एक्शन। उसके बाद वहां पे डोर लगा के उसकी लॉक की सिस्टम, चाबी की सिस्टम इन प्लेस किया गया, और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी वहां पे डिप्यूट किया गया। I think this is very important. Immediate action at times to ensure the safety, not only because the staff is female, but also because a male, female, any staff needs safety. Safety from violence. कई बार हम सुनते हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट ने या पेशेंट के रिलेटिव ने डॉक्टर को मारा, नर्स को मारा। सेफ्टी, फिजिकल वायलेंस से सेफ्टी, मेंटल हैरेसमेंट से सेफ्टी, सेक्सुअल अब्यूज से सेफ्टी, प्लीज इंश्योर सेफ्टी। एनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत कुछ करते हैं हमने योगा क्लास का टाइम लगा दिया, योगा के मैडम आ रहे थे, लोग आते ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम आता हो, तो हमने एक लैंग्वेज की क्लासेस शुरू कर दी। लोग लैंग्वेज की फ्री क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हैं। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन टेक एफर्ट्स, बट वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन करने में हेजिटेशन होती है, मोटिवेशन कम होता है। तो वी हैव टू हैव सम एक्टिविटीज जिसमें उनका मोटिवेशन बढ़े, उन्हें ये रियलाइजेशन हो कि ये जो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं ये हमारे लिए किए गए हैं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए किए गए। एनकरेज देम टू एक्सेस दोज फैसिलिटीज टू मेंटेन देयर ओन मेंटल हेल्थ। सीक फीडबैक। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फीडबैक हमेशा ऊपर वाले नीचे वालों का देते हैं, हायरार्की में, मतलब जो सुपीरियर्स होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, वो हमारे सबॉर्डिनेट्स का देते हैं। बट आप देखिएगा कि जिन कंपनीज में टू वे अप्रेजल प्रोसेस होता है, कि जहां सबॉर्डिनेट भी अपने सुपीरियर्स का फीड के लिए फीडबैक देते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो सीक फीडबैक, एंड नॉट ओनली अबाउट योर बिहेवियर एंड योर वर्क एंड ऑल, अबाउट ओवरऑल एनवायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर देयर आइडियाज, व्हाट वुड हेल्प, ये भी फीडबैक होना जरूरी है। इट कुड बी इन अ फॉर्मल वे, इट कुड बी इन अ सम ऑफिस पार्टी और ऑफिस कुड गेट टुगेदर, बट it should be noted seriously and some action plan should be made based on that. We should also share success stories portraying priority of mental health at workplace. तो इससे क्या होता है ना कि लोगों की हेजिटेशन कम होगी, स्टिग्मा कम होगा, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, लोग पहल करेंगे दूसरों के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने में भी, और अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात करके उसमें सुधार लाने के। सो प्लीज शेयर the success stories and portray successes. With this, I stop here. The forum is open for discussion, comments, questions, and suggestions. So, if there is any question, if you want to add anything, please go ahead. So, ma'am, we'll give about 5 minutes for anyone who has a question or comment, something. Okay, Sure. ma'am. Yes. So, I see you have a comment out there. Yes. Yes. Mr. Som Krishan is saying thank you to AYJ and ISST Mumbai team to conduct session on such kind of topic, which is required in most priority. It's not really okay. We have the earlier person still talking about the labor, the situation of labor worker, and as to how he's talking about how the life of a laborer is it of value as against the value of other machineries and things. I'm afraid that may not be relevant to the topic as at this juncture. I think so. I would like to show the relevance, ma'am, and I think it is relevant in a way. Okay, then you छोटे may. छोटे एग्जाम्पल्स है कि मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो रोज सुबह गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है, कई जगह पे अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है कि सूखा कचरा अलग डालिए, गीला कचरा अलग डालिए।
कुछ लोग होते हैं जो कचरा बाहर रख देते हैं क्योंकि उन्हें सुबह ऑफिस में जाना होता है, घर लॉक करना होता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग होते हैं जो उनके सामने उन्हें हाथ में कचरा थमाते हैं, कचरे की बैग थमाते हैं, बट बात कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग दीदी कह के उन्हें वो कचरे की बैग थमाते हैं और थैंक यू बोलते हुए वापस लेते हैं। सी सिंपल चीज है, एक छोटी सी चीज है कि मैंने मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोल दिया, नमस्ते बोल दिया, बट दैट मेक्स द पर्सन फील गुड कि द पर्सन इज ट्रीटिंग मी एज अ ह्यूमन बीइंग। कई बार ये जो अमेजोन के पार्सल्स लेकर आते हैं, ठीक है, या अमेजोन बोलिए, फ्लिपकार्ट बोलिए, कई बार लोग लेते हैं पार्सल, धड़ाम से दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पार्सल लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पार्सल लेते हैं, पूछते भैया पानी पियेंगे, बैठेंगे, और थैंक यू बोलते हैं। अगेन सी, दिस इज ऑल अबाउट छोटी छोटी बातें, बट इट मेक्स अ डिफरेंस, दैट मेक्स द पर्सन फील गुड, feel comfortable, and that is what is more important, I believe. So that is how the labor worker thing, I think it is relevant. Are psychotic drugs really important aside psychotherapy for dopamine enhancement? See, it depends कि कितनी severity है, डिप्रेशन की कितनी severity है, रियलिटी के साथ टच है या नहीं है। मेडिसिन्स बेवजह नहीं दिए जाते, मेडिसिन्स तब दिए जाते हैं जब वो इंसान साइकोथेरेपी के लिए भी ओपन नहीं है, उनके मेंटल ब्लॉकेजेस या मेंटल विंडोज जब कंप्लीटली शट डाउन हो गए हैं, या वो इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं कि अगर हम बता भी रहे हैं तो वो एक्चुअली यहाँ जा ही नहीं रहा है या उस पर काम ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे समय में तो हाँ, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट्स या ओवरऑल साइकेट्रिक मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दे आर इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी। बट ये भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाई लेने से हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है, because it's not only the imbalance in the neurotransmitters or neurochemicals, it is also about your thinking, your feeling, your behavior. उस पे काम होना जरूरी। तो साइकेट्रिक मेडिकेशन जहां जरूरी है, और उनके साथ साथ साइकोथेरेपी, चाहे वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो, माइंडफुलनेस हो, एटसेट्रा जरूरी है जी। So I think now there is no more question, and I want to extend my gratitude to Pratibha ma'am and especially to Dr. Suman Kumar sir for giving me this opportunity to be the resource person of this program and to conduct this webinar. I also want to thank Pratibha ma'am for all the support and the conversation that we have been having during arranging this program. Thank you, Ashish ji, for extending your support for sign language interpretation, and whole your team. Of course, I don't know everyone's name, but I really want to thank each and everyone, and nonetheless, all the participants, and especially those who have asked questions, because when someone asks questions, you do feel that it is interactive. Otherwise, you feel whether you could reach or not. So thank you so much, everyone. And over to you, Pratibha ma'am. Yeah. No, if you do the vote of thanks, nothing is left for me. Then if you do all the things, so let me take the honor of giving the vote of thanks. Yeah. So first of all, to begin with, I would like to thank my respected director for all the encouragement and support for carrying out this awareness talk. And of course, our resource person, Ms. Kirti Sudha Rajput ma'am, for agreeing to be the resource person and for having such a simple, lucid way of explaining a very serious topic, which is of much relevance given the present day times. So thank you so much, ma'am, so much for the talk, and thank you so much for explaining in a wonderful way. And I've been listening, I've been getting comments about this wonderful meeting and the way that you have done the talk. So once again, thank you, heartfelt gratitude to you, ma'am. Thank you. Thanks. I would like to extend my thanks to Dr. Asawari Shinde, ma'am, who is the coordinator for the calendar of activities, and she's been there with me in most of the managing of the activities and things. So thank you so much, Asawari ma'am. So along with that, I would also like to thank Jay Thoratji sir
in spite of facing a technological problem in the institute due to some cable issues, but he ensured that there is a smooth transition of the functioning of the program of the awareness. So thank you, Jay Thorat, sir, and Ashish ji for being the sign language interpreter. And I'm sure that this has been, a very helpful thing. Most of my, in this at this juncture, I'm remembering Prashik, Nawaz, many other people who had insisted on if there is a language and sign language interpreter, we will join, ma'am. So, and last but not the least, my lovely audience out here, students, staff, and many others, and some of you have not put on the name, it's the phone name, so I don't recognize you people. But heartfelt gratitude to one and all for being part of this program. Thanks one and all once again to all of you. Thank you so much. With this, we come to the end of this program. So, thank you once again. So I shall now end the meeting. Okay. Yes, yes. I will share the PPT with you if you want again. I made minute changes. I will share. Okay, ma'am. Yeah, sure. If anyone want, you can share it with them. Yes, thank you so much. Yes. Thank you. Yeah.